Good afternoon, dear students. Today we are going to start chapter number 2 of MSc, that is trust. Trust means faith or hope in someone. We trust our parents, we trust God because we have faith in them. Okay, let's see what is in this chapter. This is the story of a merchant who was cheated by his business partner, but he never lost hope. One of his childhood friends encouraged him to restart his business. He also helped the merchant with 5 lakh rupees. The businessman restarted his business. He repaid the money within the time period. This was the summary of this chapter. Now we will read the story line by line. Okay, so let's start chapter number 2, Trust. Once a merchant had flourishing grain business, but mistakenly he entered into a partnership with a person who was fraud. A merchant had great business of grains, but he did a mistake. Which type of mistake? He did partnership with a person who was not trustworthy. For a few years, the business went on well to newer heights, so he left his business under the care of his partner as he had to go out of station for some personal family reasons. Initially, the business hit the great success for a few years. One day, merchant went to out of station due to some personal family reason, leaving all the responsibilities and rights of business on his partner's shoulder. ओके तो एक मर्चेंट जो था उसका एक ग्रेन का ग्रेट बिजनेस था, बड़ा बिजनेस था, लेकिन उससे गलती क्या हो गई, उसने एक ऐसे पर्सन के साथ पार्टनरशिप कर ली जो कि ट्रस्ट के लायक नहीं था, ट्रस्ट वर्दी नहीं था, फ्रॉड था वो पर्सन। कुछ सालों तक तो बिज़नेस अच्छा चला, उसने सक्सेस अचीव करी, लेकिन कुछ सालों के बाद एक दिन उस मर्चेंट को किसी फैमिली रीज़न के कारण आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा और उसने अपने सारे बिजनेस की जो केयर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, राइट्स हैं, वो सारे किसको दे दिए? अपने पार्टनर को। ठीक है, अपने पार्टनर के भरोसे अपना पूरा बिजनेस छोड़कर वो आउट ऑफ स्टेशन चला जाता है। When he returned, to his utter dismay and surprise, his partner had decamped with all his earning and investment, and there was no trace of him. जब वो वापस लौटा तो उसे बहुत शौक लगा। Why? Because his partner had escaped with all his earning and investment. उसका पार्टनर जो था वो अपने साथ बिजनेस की सारी अर्निंग, सारे इन्वेस्टमेंट लेके जा चुका था और उसका कोई नामो निशान नहीं था। Trying to find him was as futile as hoping against hope. Futile means useless. Okay? तो उसे ढूंढना एकदम यूजलेस था। उसे पता था कि वो उसे नहीं सर्च कर पाएगा, लेकिन फिर भी वो एक होप कर रहा था कि मुझे उसके बारे में कोई क्लू मिल जाए। ओके, So he had no option but to start afresh from a scratch with no investment. अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, बस वो एक नया स्टार्ट कर सकता था, लेकिन उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं था। Starting with no investment was unthinkable, so he thought it best to pay off his debts with whatever little money he had. उसके पास कोई मनी नहीं था, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो एक नया बिजनेस स्टार्ट करना तो इम्पॉसिबल था। तो उसने क्या किया, उसके जितने भी डेट्स थे, जितने भी उसको अमाउंट किसी को पे करना था, वो सब कुछ उसने पे कर दिया अपने पास जो उसकी थोड़ी सी सेविंग थी, थोड़ी सी मनी थी उसके पास, उससे। ओके, देन ही फाउंड एम्प्लॉयमेंट विद वन ऑफ द erstwhile merchant with whom he had traded earlier, and for some years he worked on rupees 100 a month. Then he started a new job with one of the former merchant. Erstwhile means former merchant with whom he had
वर्क बिफोर, जिसके साथ वो ऑलरेडी पहले ट्रेड कर चुका था, जिसके साथ वो ऑलरेडी वर्क कर चुका था, उसके यहाँ उसने एक जॉब ज्वाइन कर ली एंड ही गॉट ₹100 अ मंथ, उसे ₹100 पर मंथ इस वर्क के लिए मिलने लगे। ठीक है। On his master's bidding, he was on his way back to Gaya when he took ill. Here he meet Vivek, one of his old friend. Bidding means instruction or the command or the order. Okay. When his master gave him order to go out of station, he went there, but when he way back to गया, लेकिन वो जब वापस गया लौट रहा था, he took ill, वो बीमार हो गया। तब वहाँ वो किससे मिला? उसके एक ओल्ड फ्रेंड से जिसका नाम था विवेक। ओके। विवेक saw his poor health and taking pity on him, took him to his residence and treated him for about a month before he was again proceeded to Gaya. When Vivek met the merchant, he saw his poor health and had sympathy with him. जब वो उससे मिला, विवेक अपने फ्रेंड मर्चेंट से मिला, तो उसे उससे सिंपथी हो गई बिकॉज ही इज़ इन द पुअर हेल्थ, वो वैसे भी बीमार था। ठीक है। तो विवेक उसे अपने रेजिडेंस, अपने घर पे ले गया और उसका 1 मंथ तक ट्रीटमेंट करवाया। ठीक है। During the course of their morning walk, Vivek asked him what he would do if his master had filled his place. एक दिन मॉर्निंग वॉक पे जब वो दोनों गए थे, तब विवेक ने उससे पूछा कि अगर तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारे प्लेस पे किसी और को रख लिया होगा तो तुम क्या करोगे? बिकॉज इट्स बीन अ मंथ, क्योंकि 1 मंथ उसे विवेक के साथ रहते हुए हो गया था। He said that he would try to find other employment. उसने कहा वो किसी अदर जॉब के लिए सर्च करेगा। Vivek asked him, why do not try to get someone to help you to become a merchant again? Vivek questioned him कि वो फिर से ट्राई क्यों नहीं करना चाहता मर्चेंट के लिए, उसके लिए वो किसी से हेल्प ले ले। The merchant replied, the thought of becoming a merchant again and no one in all the world to trust me without any security to offer with the 5 lakh rupees needed to start afresh. मर्चेंट ने रिप्लाई दिया कि वापस से मर्चेंट बनने के लिए अब कोई भी उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा विदाउट सिक्योरिटी, बिकॉज लोन लेने के लिए उसे कोई ना कोई सिक्योरिटी ऑफ़र करनी होगी, लेकिन उसके पास तो कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। तो वो 5 लाख रुपीज़ जो कि एक स्टार्ट के लिए ज़रूरी हैं, एक नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है, वो उसे कैसे मिलेंगे? When Vivek gave him a ticket for Gaya and 5 lakh rupees into his hand, he kept looking at the notes in his hand and to the Vivek's face. जब विवेक ने उसे गया जाने के लिए टिकट दिया एंड 5 लाख रुपीज़ भी दिए, तो ही kept looking at the money, वो मनी को देखता रहा और फिर उसने विवेक के फेस को देखा with a great surprise. As the guard whistled, putting his hat on the Vivek's feet, he said, the slave of yours will return you the money within 1 year. As the guard whistled, जब ट्रेन के जाने का टाइम हुआ, गार्ड ने विसल किया। He bowed to Vivek's feet, उसने विवेक को झुक के रिस्पेक्ट दिया and he said that he will return the money within the year. 1 साल में वो ये मनी वापस विवेक को लौटा देगा। एंड ही एड्रेस्ड हिमसेल्फ एज द स्लेव ऑफ विवेक, और उसने अपने आप को विवेक का स्लेव बोल के एड्रेस किया। ओके। एंड सो ही लेफ्ट विद द विवेक्स बेस्ट पार्ट ऑफ सेविंग्स, वो विवेक की सेविंग्स को लेके चला गया। विवेक वुड सी हिम अगेन वॉज नेवर डाउटेड, विवेक उससे दोबारा मिल पाएगा इसमें कोई डाउट नहीं था। The poor in India never forget a kindness. In India, kindness is the best religion, and the obliged person never forget that kind act
which was done for him is need. The obliged person can do anything willingly to repay the kindness in India. Okay? इंडिया में अगर आप किसी के लिए कोई काइंड एक्ट करते हो तो वो आपको उसके लिए रीपे ज़रूर करेगा और आपका वो काइंड एक्ट कभी नहीं भूलेगा. ओके, बट विवेक थॉट दैट हिज प्रॉमिस वॉज बियॉन्ड पावर ऑफ अकम्प्लिशमेंट. इन दिस विवेक वॉज रॉन्ग. विवेक ने ऐसा सोचा कि मर्चेंट का जो प्रॉमिस है वो उसके पूरे होने की पावर से बियॉन्ड है, मतलब वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा. ही हैज़ डाउट इन द कंप्लिशमेंट ऑफ द प्रॉमिस. उसे डाउट था कि ये प्रॉमिस कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. One evening, the merchant stood in the Vivek's veranda in spotless white. Since the light from the room behind him was in Vivek's eyes, he did not recognize him until he spoke. एक दिन वो मर्चेंट विवेक के बरांडा में स्पॉटलेस वाइट में खड़ा हो गया, क्योंकि लाइट जो है वो उस मर्चेंट के पीछे से विवेक के आइज़ तक पहुंच रही थी, इसलिए वो उसको पहचान नहीं पाया जब तक मर्चेंट कुछ बोला नहीं. It was the same man a few days before the expiry of the time limit he had set himself. ये वही था जिसने कुछ दिनों पहले अपनी टाइम लिमिट की एक्सपायरी खुद ही ने सेट की. He told Vivek of his trading transaction and the success that had attended them. उसने विवेक को अपने ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन के बारे में बताया और उस सक्सेस के बारे में बताया जो उसने अटेंड कर ली थी, जो उसको मिली थी. स्टार्टिंग विद अ फ्यू बैग्स ऑफ ग्रेन्स and being content with a profit of 200 rupees per bag, he had gradually and steadily built up his business until he was able to deal with consignments up to 30 tons in weight, on which he was making a profit of 2000 rupees per ton. ग्रेन्स के कुछ बैग्स के साथ उसने बिज़नेस की स्टार्टिंग की थी और पर बैग उसे 200 रुपीज़ का प्रॉफिट होता था. ग्रेजुअली बिज़नेस बढ़ने लगा, धीरे धीरे बिज़नेस बढ़ने लगा. कब तक? जब तक कि वो 30 टन्स इन वेट का कंसाइनमेंट नहीं डील करने लगा. ठीक है, उसका एक जो कंसाइनमेंट होता था वो 30 टन्स का होता था. ठीक है, और उसमें पर टन वो 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाता था. ओके, एज द टाइम ड्रू नियरर फॉर हिज ट्रेन टू लीव, ही लेड 5 लाख रुपीज़ नोट्स ऑन विवेक्स नीज. जैसे जैसे ट्रेन के जाने का टाइम आने लगा, उसने विवेक के नीज पे 5 लाख रुपीज़ रख दिए. Then he took out a purse from his pocket, held it out to the narrator, saying, "This is the interest, calculated 20%, that I owe you on the money you lent me." उसने एक पर्स अपनी पॉकेट में से निकाला और विवेक को कहा कि ये 20% के अकॉर्डिंग कैलकुलेटेड इंटरेस्ट है उस मनी पे जो तुमने मुझे दी थी. Vivek told him that it was not their custom to accept interest for their friends. Vivek refused to take interest, denied the interest because the merchant was his friend, and this is not the custom to accept interest on that money which is given to the friend. Before leaving, the man said, "During the month I stayed with you, I had talks with your servants and with your workmen, and I learned from them that there was a time when you were reduced to 1 chapati and a little chutney." जाने से पहले मर्चेंट ने बोला, जब मैं तुम्हारे साथ 1 मंथ रहा था उस ड्यूरेशन में मैंने तुम्हारे सर्वेंट्स और तुम्हारे वर्कमैन से बात की थी, एंड उनसे मुझे पता लगा था कि एक ऐसा टाइम भी था जब तुम एक सिंगल चपाती और थोड़ी सी चटनी के साथ सर्वाइव कर रहे थे. इफ़ सच अ टाइम शुड एवर कम अगेन, विच परमेश्वर फॉरबिड,
योर स्लेव विल प्लेस ऑल दैट ही हैड एट योर फीट। अगर ऐसा कभी भी कोई टाइम आया, भगवान न करे कभी ऐसा हो, गॉड फॉरबिड ऐसा कभी ना हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसा टफ टाइम वापस आया तो योर स्लेव, दैट मीन्स दैट मर्चेंट, विल प्लेस ऑल दैट ही हैड, उसके पास जो भी कुछ होगा वो सब तुम्हारे फीट्स पे लाके रख देगा। द मर्चेंट वॉज अगेन एड्रेस्ड हिमसेल्फ एज द स्लेव ऑफ विवेक and he is ready to give everything in the tough time of Vivek. Until Vivek left the place where he was posted for his hometown 11 years later, he received each year a big basket of the choicest oranges from the trader's garden, for he had attained his ambition of becoming a merchant once again and returned to the home he had left with Vivek's help when his partner had robbed him. जब तक कि विवेक उस प्लेस को छोड़ के, जहाँ उसकी पोस्टिंग थी, उसे छोड़ के अपने होम टाउन वापस नहीं चला गया, तब तक यानी 11 ईयर्स तक उसे एक बास्केट फुल ऑफ ऑरेंजेस हर साल रिसीव होती रही। ये जो ऑरेंजेस थे ये उस मर्चेंट के गार्डन की हुआ करते थे। दे वर द बेस्ट ऑरेंजेस। ओके, मर्चेंट उन्हें क्यों भेजता था? विवेक की हेल्प की वजह से वो अपने घर लौटा था, तब जबकि उसके पार्टनर ने उसे चीट किया था, उसका सारा सामान, सारा इन्वेस्टमेंट लेके वो चला गया था, और उसी की हेल्प के कारण मर्चेंट वापस अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाया था। इसलिए विवेक के इस काइंड एक्ट के लिए वो हर साल उसे एक बिग बास्केट फुल ऑफ ऑरेंजेस और गुड्स भेजा करता था। ओके, सो बाय दिस स्टोरी वी लर्न दैट वी शुड नॉट चीट एनीवन, वी शुड नॉट break anyone's trust. What is the moral of the story? That if you succeed in cheating someone, don't think that the person is a fool. Realize that the person trusted you much more you deserved. That means अगर आप किसी को चीट करने में सक्सेसफुल हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सामने वाला पर्सन फूल है। इसका मीनिंग ये है कि उसने आप पर जितना आप डिज़र्व करते हो उससे भी ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया। दैट मीन्स यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी में फॉल्ट है। यू आर नॉट ट्रस्ट वर्दी। ओके, व्हेन यू फुली ट्रस्ट समवन विदाउट एनी डाउट, you finally get one of two results, a person for life और a lesson for life. अगर आप किसी पर बिना किसी डाउट के पूरा ट्रस्ट करेंगे तो आपके पास दो रिज़ल्ट आएंगे। या तो आपके लिए वो पर्सन ट्रस्ट वर्दी रहेगा, दैट मीन्स वो आपका एक इम्पॉर्टेंट एसेट बन जाएगा, या फिर अगर उसने आपको चीट किया तो आपको इससे एक लेसन मिलेगा। क्या? कि वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीबडी ब्लाइंडली, कि हमें किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ओके।